السلام علیکم ناظرین۔ سال 2024 میں کون سے پاکستانی ڈرامے میگا ہٹ رہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارا آج کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن مکمل دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آج میگا ہٹ ڈراماز لائے ہیں جو آپ کو بہترین انٹرٹینمنٹ دیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، سیریل کلر۔ گرین انٹرٹینمنٹ پر نیا کرائم تھرلر ڈرامہ شروع ہوا ہے۔ ڈرامے کی کہانی اچھی ہے، لیکن لگتا ہے پروڈیوسر کے پیسے کم پڑ گئے تھے جو کچھ چیزوں سے جان چھڑا دی گئی، جیسے کہ اسپی سارا یعنی صبا قمر کا دفتر۔ اتنے بڑے کمرے میں صرف ایک میز اور ایک کرسی۔ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کسی پولیس والے کا ایسا دفتر نہیں دیکھا۔ پھر جو بیوٹی پارلر والی باجی دکھائی گئی ہے، فائزہ گیلانی، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بہت سی عام لڑکیوں کو سٹار بنایا، لیکن باجی کا جس طرح کا پارلر ہے وہاں کوئی عام کام کرنے والی ماسی میک اپ کروانے نہ جائے۔ بڑے سٹارز کیا خاک آئیں گے؟ وہ نیلی پیلی بتیاں لگا کر پتہ نہیں کون سے ملک کے ٹاپ میک اپ آرٹسٹ دکھائی ہے، جو ڈرامے میں میک اپ کے نام پر بالوں پر گندا سا سپرے چھڑک کر کہتی ہے، ڈارلنگ یو لک گارجیس، بہت پیارا ہیئر سٹائل بن گیا ہے۔ باجی، اس سے اچھا ہیئر سٹائل تو میں بنا دوں، تو کتنے دی وڈی میک اپ آرٹسٹ ہیں۔ پھر صبا قمر کی ایکٹنگ اچھی ہے، لیکن اس رول میں بہت زیادہ گلیمرس لگ رہی ہے۔ اس کے میک اپ پر تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے تھا۔ ایک پولیس والی جو سارا دن سڑکوں پر خاک چھانتی ہے، دھوپ مٹی گرمی میں، لیکن میڈم سارا کا میک اپ پرفیکٹ ہے۔ باقی ڈراموں میں ہم اکثر رائٹرز پر تنقید کرتے ہیں کہ کہانی اچھی نہیں ہے، لیکن اس ڈرامے کی کہانی تو ٹھیک ہے، لیکن پروڈیوسر نے پیسے بچا کر اور ڈائریکٹر نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ڈرامے کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نمبر 9، جینٹل مین۔ ڈرامہ جینٹل مین ایک میگا ہٹ سیریل تھا جس کے کرداروں کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ اس کے رائٹر خلیل الرحمن قمر ہیں۔ یہ نیٹ فلکس ویب سیریز ٹائپ ہے۔ اس بات سے میں تھوڑی سی قائل ہوں کیونکہ ایکشن اور سسپینس ایسا ہی رکھا گیا ہے۔ دراصل جینٹل مین فلم ہی تھی جو تقریباً 2020 میں خلیل الرحمن قمر نے لکھی تھی۔ تب یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ڈرامے کی شکل دے دی جائے گی۔ گرین ٹی وی کی تب تیاریاں ہو رہی تھی۔ گرین ٹی وی کے مالک میجر عمران رضا اور سر خلیل الرحمن قمر کی دوستی تو تھی۔ تب میجر صاحب نے 2021 کے رمضان المبارک میں اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ یہ گرین ٹی وی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جسے بننے میں تقریباً 5 سال لگ گئے۔ مجھے ایک چیز کا ڈر ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ غنڈہ کیسے بننا ہے اقتدار میں آ کر، اور میں جانتی ہوں کہ ایسے حقیقی کردار آپ کو کافی کرسیوں پر بیٹھے ملیں گے۔ سچ کو اسکرین پر دیکھنا شاید گوارا نہ ہو۔ نمبر 8، ام عائشہ۔ آج کل جیو پر ڈرامہ چل رہا ہے ام عائشہ۔ اچھا ڈرامہ ہے۔ ساس بہو نندو کی سازشوں سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ سیکھ دینے کے لیے کسی نے لکھا، پر اس میں کافی باتیں کنفیوزنگ ہیں۔ محض سکارف کی بنیاد پر کیریکٹر کو اتنا ٹارچر کرنے کی کیا تک؟ آپ سکارف میں ہیں، جاب نہیں مل سکتی، آپ آفس میں سکارف نہیں پہن سکتی، شادی کے فنکشن پر جاتے سکارف پہن کر ڈل لگ رہی ہو، سکارف اوڑھ کر بوڑھی لگتی ہو، سکارف والی لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ اور تو اور دکھایا گیا ہے کہ داڑھی والے لڑکے کا رشتہ آیا، پر انہوں نے بھی سکارف والی عائشہ کو پسند نہیں کیا۔ پھر جی اب کسی اور لڑکے سے منگنی پر لڑکے کی ڈیمانڈ دکھائی ہے کہ فوٹو شوٹ کروانا ہے سکارف اتروا کر، اور سکارف بھی صرف سر ڈھانپا ہوا ہے، باقی سب ایسے ہی ہے۔ وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ عائشہ سکارف لیتی ہے، پھر بھی یہ سب ڈرامہ۔ عائشہ محرم نامحرم کی باتیں کرتے ہوئے انکار کرتی ہے۔ منگنی توڑ کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور عائشہ کے باپ کو ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ ماں عائشہ کے حجاب کو ہی برا بھلا بولتی ہے۔ تھوڑا سا تو فرق دکھاتے پردے اور محض سکارف میں۔ سکارف تو ہر جگہ آج کل نارمل ہے، کسی بھی جگہ پر پابندی نہیں ہے۔ ہاں البتہ مکمل پردے اور حجاب میں فرق ضرور ہے۔ ایک طرف عائشہ محرم نامحرم اور شریعت کی باتیں کرتی ہے، تو دوسری طرف منگنی کا اتنا ایڈوانس فنکشن، اور پھر وہ اپنے باس کے ساتھ محبت کی دعوے دار بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے تھوڑا اور ورک ہونا چاہیے تھا اسکرپٹ پر۔
स्कार्फ पर इतनी तवज्जो और बाकी मामलात, जबकि कैरेक्टर को थोड़ा मज़बी दिखाया गया है। जिसने ये सीरियल देखा है, मेरे रिव्यू पर राय ज़रूर दीजिएगा। नंबर 7, सुकून। सुकून ड्रामा एक सॉफ्ट स्वीट लव स्टोरी है जिसमें आजकल की टिपिकल सास बहू वाली साजिशें देखने को नहीं मिली। सोने पर सुहागा अच्छे थीम के साथ साथ कास्ट का इंतखाब भी अच्छा है। एहसन खान और सना जावेद मेरे पर्सनली फेवरेट अदाकार हैं। एहसन खान मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो कह रहे थे, मेरी बीवी और बच्चे जब मर्जी उठें उन्हें कोई मसला नहीं। मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता करता हूँ। जब भी खुद को थका महसूस करता हूँ, अपनी माँ की गोद में सर रख के उनके पास लेट जाता हूँ। अब आते हैं ड्रामे की थीम की तरफ, जिसमें लड़कियों को बताया गया है कि हर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले के पीछे नहीं भागते। ऐसे लड़के लड़कियों को चैलेंज के तौर पर लेते हैं, जिस तरह के रज़ा ने किया, और फिर आखिर में ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं। बेचारी लड़कियां उनकी वक्त गुजारी को मोहब्बत समझकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं हर किसी की किस्मत आईना जैसी हो, जिसको इतना सब होने के बावजूद हमदान जैसा लाइफ पार्टनर मिल गया। अगर हकीकी ज़िंदगी होती तो 95% चांसेस थे कि आपके नसीब में भी उस्मान जैसा शौहर लिख दिया जाता, जो रोज़ आपको आपके माजी के ताने देकर आपका जीना दोपहर कर देता। नंबर 6, मोरचाल। ड्रामा मोरचाल की कहानी शुरू होती है सस्पेंस से, और सस्पेंस भी इतना कि बंदे को कुछ नजर ही ना आए। वैसे अगर आवाज़ों को सुना जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी बंदे को रेल के हवाले कर दिया, यानी कि रेल के नीचे देकर मार दिया है। अब इस सीन की क्या कहानी है, अगर ये भी बता दिया तो आपका सस्पेंस खराब होगा। आप ऐसे ही फैन होंगे ड्रामे की जैसे अब मोरचाल ने अपने जाल में फंसा लिया है। दूसरे सीन में शाहजी को देखते ही आपको कहानी का अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे वो एक जुमला है ना, चंगे तो पंगे के पंगे तो चंगे। लेकिन शाहजी अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनकी औलाद भी उतनी अच्छी हो। लेकिन अभी पहले किस्त है तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी ड्रामे की कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि देखते हुए मज़ा आ जाता है। नंबर 5, ज़िद्दी। ऑन टीवी पर एक ड्रामा ज़िद्दी एक मेगा हिट सीरियल है। इसको आप देखेंगे और कहानी समझ में आ जाएगी। बल्कि यूँ कहना दुरुस्त होगा कि हम टीवी के एक ड्रामे की कहानी की पूरी कॉपी की गई है। बाकी मेरा ख्याल है कि ऐसे ड्रामे नहीं लिखने चाहिए। अगर कुछ लिखना और बनाना है तो ऐसा बनाएं जिससे लड़कियां सीखकर माँ बाप की इज्जत करें। और कहते हैं कि हमने ड्रामा बनाया है कि देखने वाले सीखें। तो मेरा सवाल ये है, आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अब हर लड़की बागी हो जाए, माँ बाप को बातें सुनाए, बड़ी बहन अगर ससुराल से आए तो उसे बातें सुनाए और अपने भाई की इज्जत खराब करे। नंबर 4, खुशबू में बसे खत। आजकल एक ड्रामा हम टीवी पर नशर हो रहा है, खुशबू में बसे खत। ये कहानी एक शायर के गिर्द घूम रही है और शायर का किरदार अदनान सिद्दीकी निभा रहे हैं। कैसा निभा रहे इस पर तो बाद में बात की जा सकती है, लेकिन जो बात हम कभी किसी की जुबानी अचानक सुन लिया करते हैं वो बातें इस ड्रामे में ज़रूर दिखाई जा रही हैं। मसलन लीड रोल शाहिर ठरकी है और तो और उसके साथ छोटे शाहिर भी ठरकी हैं। ख़वातीन जो उन शोरा को पसंद करती हैं वो शाहिर के लिए एक बेहतरीन शिकार होती हैं। शायर ख़वातीन को शोहरत का झांसा देकर रातों रात शाहिर बना देते हैं जो उनकी बातों में आ जाएं। एक खातून शायरा भी दिखाई गई हैं जो अदनान सिद्दीकी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एक साथ का लबे-लबाब यह है कि शायर अहमद ज़रियाब यानी कि अदनान सिद्दीकी बेकार लेकिन मशहूर और ख़वातीन का पसंदीदा शायर है। तमाम अदाकार अपना किरदार बेहतरीन निभा रहे हैं, देखने में मज़ा आ रहा है। नंबर 3, जिंदो। जिंदो भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पेश करदा एक बेहतरीन शाहकार है जिसकी हिदायतकारी अंजम शहजाद ने की है और पहली बार ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 12 जुलाई 2023 को नशर की गई थी। इस ड्रामे के मुसन्निफ कुर्बान अली राव थे और डायरेक्ट अंजम शहजाद ने किया। जिंदो ने तजर्बात को बिल्कुल नई सतह पर ले जाकर न सिर्फ एक मुख्तलिफ कहानी बल्कि किरदारों को भी मुतारफ करवाया जो आम तौर पर ड्रामों में नहीं दिखते।
जिन दो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में एक ताकतवर कहानी है जो कि एक ऐसे इलाके में तरतीब दी गई है जहां मर्दों का हतमी फैसला है। इस सीरीज में मरकजी किरदार हुमायमा मलिक ने अदा किया। यह हुमायमा मलिक का वापसी का प्ले है जो उनके इरादों को बिल्कुल वाज़े करता है। ताहम बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने ड्रामे में अपनी ज़बरदस्त अदाकारी से नाजरीन को मुतासिर किया। ज़ुबान की रुकावट एक और वजह है कि जिंदों को इतनी तवज्जो और मकबूलियत नहीं मिली जितनी कि दूसरे नॉवल ड्रामों में। नंबर 2, ब्रेकिंग न्यूज़। ड्रामा सीरियल ब्रेकिंग न्यूज़ ग्रीन टीवी का ड्रामा सीरियल है जिसमें आप हमजा सोहेल को एक डैशिंग हीरो के तौर पर देखोगे। ये लड़का ड्रामे में एक न्यूज़ रिपोर्टर बना है और देखने में ही बहुत प्यारा और मासूम नजर आ रहा है। अमर खान भी ड्रामा सीरियल ब्रेकिंग न्यूज़ में सहाफ़ी का किरदार अदा करेंगी। काशिफ निसार की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे की कहानी बी गुल ने लिखी है। इस ड्रामे में अमर खान के साथ अदाकार हमजा सोहेल भी सहाफ़ी के रूप में दिखेंगे। ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है। सो आप पहली बार टीवी स्क्रीन्स पर दो सहाफ़ियों और न्यूज़ रिपोर्टर्स की लव स्टोरी को देखेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस ड्रामे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आपने कब से इस ड्रामे को देखना शुरू किया ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, खई। ड्रामा खई एक मेगा हिट सीरियल है। जियो टीवी पर खई नाम का ड्रामा इन दिनों ऑन एयर है। कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की जाए तो बुनियादी तौर पर यह कबायली दुश्मनी पर मबनी कहानी है जो दहाइयों चलती है। उमूमन इससे कई नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में फिल्माया गया ये सीरियल अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी ध्यान खींच रहा है मेरा। इसमें फैसल कुरैशी के वालिद का किरदार अदा करने वाले खालिद भट्ट ड्रामे के दौरान ही इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के हसीन मंजरनामे पर ये उस ज़मीन की एक रिवायती कहानी फिल्माई गई है। दो बड़े ज़मींदारों की ज़मीन और जन के दरमियान जंग है। दुर्राब खान ने दरवेश खान के बाप को मार दिया। दरवेश खान मुल्क छोड़कर चला गया। 25 बरस बाद वापस आया और उसने अपने बाप के कातिल को माफ़ करने का फैसला करके अमन का पैगाम दिया। दुर्राब खान का ख्याल था कि पढ़ा लिखा इंसान बंदूक नहीं उठा सकता, कमज़ोर हो जाता है, लेकिन रिवायत परस्ती उसे यकीन नहीं दिला रही कि माफ़ करना ज़्यादा बड़ी ताकत है जो कि दरवेश खान कर रहा है। खई के मायने किसी को मालूम हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।